Hello and welcome to this special presentation on MSME Day on Bloomberg Quint. We all are very, very familiar with the challenges and the struggles that MSME sector is going through. And we have a very special panel of experts on this subject to talk about Mr. Deepak Bagla, MD, CEO of Invest India, Mr. Madan Sabnavis, Chief Economist of Care Ratings, and Mr. Animesh Saxena, President of Federation of Indian Small and Micro and Small and Medium Enterprises. Welcome all. आप लोगों ने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया. We all know what kind of challenges are there. So without much ado, I will come direct to the core issue and I will ask Mr. Bagla to give his perspective that what is the latest current reports he is getting about the challenges that MSME sector faces. Sanjay, thank you. Let me first start by saying कि MSME भारत की जान है, ये भारत का दिल है. और मैं इसलिए इसको कहता हूँ ये because I firmly believe जो नया भारत अब आएगा और इस कोविड से ऑलरेडी आपने उसकी शक्ल देखने का थोड़ा सा दिख रहा है, that will be propelled by the MSME of India. That will be propelled by the small towns and cities of India. और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इस कोविड दौरान ही आप देखिए कि किसने हमारी सबसे ज्यादा मदद कर पाए, वो है हमारे एमएसएमईज. जैसा जब आपके पास पहली मार्च पिछले साल 30 मार्च को आपके पास पीपी नहीं थे, आपके पास मास्क नहीं थे, और 15 जुलाई के पास आपके पास इतने थे कि आप सारी दुनिया को दे रहे थे, वेंटिलेटर दे रहे थे, मास्क दे रहे थे, पीपी दे रहे थे. वो किसने किया? वो हमारे एमएसएमईज ने किया. वो क्यों? They have the strong ability to innovate, frugal innovation. They have the ability to be nimble, very quickly change their business models and to pivot their business models well. And the masters of the ability to manage constraints is India's MSME. These are all what is the success factors for success in the new world, and that is where MSME is concerned. अब तुम्हारे सवाल पे एक डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का बड़ा रिसेंट सर्वे हुआ था. उसमें यह आया था एमएसएमईज पे कि 82% एमएसएमईज हैव अडॉप्टेड डिजिटाइजेशन, जो उस सर्वे सैंपल में थे, और उनके 54% डिक्रीज इन कॉस्ट एंड 51% इंक्रीज इन कंपेटिटिवनेस. अलग सर्वे में यह हुआ था कि 73% एमएसएमईज इन इंडिया सेड कि जैसे वो कोविड से निकलेंगे वो उसको सरवाइव कर पाएंगे, एंड इनफैक्ट 61% said कि कोविड के बाद they will be much stronger than they were before COVID. So the strength of India's competitiveness and its ability to do this is going to be run by the MSME, which is going to be really propelling the growth going forward. अब मैं दूसरी चीज एक बार और छोड़ना चाहता हूं. हमारे साथ मदन है, हमारे और मित्र हैं, वो बताएंगे. एक तो मैंने आपको बताया their ability to adapt technology fast, their adaptive ability to do frugal innovation, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, their ability to manage constraints, their ability to change business models. And one of the most important things which has happened, actually two of them. One is जो इस सरकार ने पूरा digitization effort किया इंडिया, the India stack, जहां पे आपके you have over a billion people मोबाइल फोन के साथ, close to a billion, अगले 2 साल में बिलियन हो जाएंगे with the internet, a billion people with a bank account. इससे क्या है? एक बैठे बिठाए एमएसएमई को सोशल मीडिया पे पूरा एडवर्टाइजिंग और मार्केट एक्सेस मिल गया जी, बड़े आराम से, बड़ी सरलता से, which was one of the biggest challenges. और दूसरी चीज जो हम कई बार भूल जाते हैं, इस जीएसटी से जो इंट्रोडक्शन हुआ है, एमएसएमई को क्या सब फायदा होगा? अभी तक ऑल लेंडिंग इन इंडिया was based on what is the collateral which is there, या आपका घर या आपकी जमीन. We could never lend based on cash flows because we did not have the sanctity of cash flows. Now with GST coming in, banks and funding agencies will be able to eventually fund on cash flows and reach out to a larger number of MSMEs, again propelled by the big fintech community and the microfinance committee.
तो एक चीज देखिए, आज एमएसएमई जी। बेचारा 18 से 22% पे पैसा उठा रहा है। हम्म। कल उसको अगर रेगुलर फंडिंग सिनारियो ऑफ इंस्टीट्यूशन, फॉर्मलाइज्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर या लेंडिंग स्ट्रक्चर में 14, 16, 12% पे मिले, look at the profitability which goes up. Put it all together. ये भारत की जान है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भारत की जान है, और आपने इनकी तारीफ में, इन्होंने जो परसिवियरेंस दिखाया उसकी तारीफ की, वो बहुत सही है। लेकिन इनकी जान कैसे निकली है उसके लिए कुछ डेटा पॉइंट जो और हैं, डन ब्रैडशीट वाले सर्वे में भी ये भी था कि इनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मार्केट एक्सेस की अभी बहुत बड़ी समस्या है, और क्रेडिट लाइन के लिए भी जो सुविधाएं आई हैं वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रोसीजरल इश्यूज हैं। इस पर हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टेक होल्डर्स के इस तरह के बहुत सारे इश्यूज सामने आए हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि ये जो 2 डेटा पॉइंट मैं देखता हूं कि 79% रिटेल सेल डाउन है। हमने इकोनॉमी की जो बात की वो तो बिल्कुल सही है कि इकोनॉमी में ब्रॉड वैसा इंपैक्ट नहीं हुआ जो कि पहले लॉकडाउन में हुआ था, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में खास करके ऑलमोस्ट डबल का इंपैक्ट हम देखते हैं। 60% एनपीएस जो हुए हैं अप्रैल और मई महीने में, वो उसका कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर का है। ये बताता है कि कितना डिस्प्रोपोर्शनेट पेन है इनको। सक्सेना साहब, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। मैं अब बोलूं, दीपक जी ने बहुत बढ़िया कहा कि ये एमएसएमई जान है, पर मैं पूछता हूं इस जान की परवाह कैसे है? हमेशा हर फोरम पे एमएसएमई की तारीफ होती है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग में और जॉब प्रोवाइड करने में, लेकिन हमारे जो पेन पॉइंट्स हैं जिसको हर रिपोर्ट बताती है, डीएनबी भी यही कह रही है, मार्केट एक्सेस और फाइनेंस, इसको हमें मिल कौन दे कौन रहा है? आज भी बैंक्स जो है, बहुत अच्छी चीज उन्होंने कही कि अगर वो जीएसटी से कैश फ्लो बेसिस पे होगा, आज भी बैंक के मैनेजर के बिना कोलेटरल के आपको एक पैसा देने को राजी नहीं है। और जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट अभी आया है, जो स्पेशली इस कोविड वेव, सेकेंड वेव में, कि डिमांड खत्म हो गई। वी हैव नो ऑर्डर्स, कैश फ्लो इज बैडली इंपैक्टेड, पेमेंट्स नहीं आई, जहां पर पीछे भी पेमेंट गई थी वहां नहीं आई। रॉ मटेरियल प्राइसेस आप सभी लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान में कैसे शूट अप हुई, और एमएसएमई जो है वो इस हाई प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। उसके पास ना होल्डिंग कैपेसिटी है, ना इतनी नेगोशिएशन स्किल्स हैं उसके पास। तो ये 2-3 चीजें जब तक एड्रेस नहीं होंगी, हम लोग इनसे जूझते रहेंगे। ये कोविड ने, ये प्रॉब्लम हमारी इनहेरेंट थी पहले से ही। हमारी पेमेंट नहीं होती टाइम पे। आप चाहे पब्लिक सेक्टर देख लें, चाहे प्राइवेट सेक्टर देख लें, बड़े कॉर्पोरेट जिनको हम सप्लाई करते हैं B2B में, वहां से पेमेंट नहीं आती। पेमेंट का जो मैकेनिज्म रिजोल्यूशन का है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है इसमें हमारी कंट्री में। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने काउंसिल्स बनाई, फैसिलिटेशन काउंसिल, लेकिन वो काउंसिल का डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। फॉरेन जो बड़ी कंपनी है वो चैलेंज कर देती है, हायर कोर्ट में चली जाती है उसको लेके। अनलेस, सिंस दीपक इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ, अनलेस द गवर्नमेंट कम्स विद अ पेमेंट रेजोल्यूशन फर्स्ट, कि जो भी पेमेंट होगी, चाहे पीएसयू हो चाहे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हो, जैसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बनाया, वेरी गुड इनिशिएटिव, बट इट हैज अ लिमिटेशन। A 500 crore or 250 crore company is only on there. Why not mandatory for everybody? उसके साथ साथ फाइनेंशियल, he very rightly said कि जो हम लोग एमएसएमई में पोटेंशियल है, आज हम 18 से 22 नहीं दीपक, I'll correct you, it is 24 to 30% which we borrow the money from the private lenders and these companies. Unfortunately NBFC जो थोड़ा सा एक फिर भी एक रिलीफ था, वो हिंदुस्तान में पिछले 3-4 सालों में मिसमैनेजमेंट की वजह से वो काफी हो गए। फिनटेक इज द होप एंड डिजिटाइजेशन, ही हैज राइटली सेड, most of the MSMEs have learned this in this pandemic, that digitization is the only savior. It can take them to the next level. There was an hesitancy, but now we have realized, earlier we were all people centric working, अब हम लोग प्रोसेस सेंट्रिक वर्किंग की तरफ जा रहे हैं, चाहे छोटी एमएसएमई हो चाहे थोड़ी सी बड़ी हो उसमें। तो these are the issues which have to be addressed. बिल्कुल। एक देखिए, सक्सेना साहब जिस स्पेस को बिलोंग करते हैं वो है कंप्लेन वाली, और बागला साहब जिस स्पेस को बिलोंग करते हैं, जिस एंटिटी को बिलोंग करते हैं, उनका काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन बीच में जो बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, इसीलिए मैंने तीसरे नंबर पे रखा सबनवीस साहब को, जो बिल्कुल न्यूट्रल नजरिया देंगे, डेटा बैक कि क्या हालत है एमएसएमई की। So the way I look at it is that we've had 2 waves of COVID.
और दोनों वेव्स में हमने देखा है कि द सेक्टर व्हिच वाज इंपैक्टेड द मैक्सिमम वाज द एसएमई सेक्टर। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनवेरिएबली द एसएमईज आर बीइंग लिंक्ड टू द फॉर्च्यून्स ऑफ द लार्जर कंपनीज इफ यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप सर्विसेज सेक्टर में है, यू आर अ डायरेक्ट B2C सर्विस प्रोवाइडर, यू आर इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बोट। और जब हमने देखा है कि लॉकडाउन होता है, फर्स्ट टाइम वी हैड अ लॉकडाउन फॉर 2 months, अभी भी हमने देखा है कि 2 months, maybe it's going on for 3 months or 4 months. The enterprises which get affected the most are the SMEs. So उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब भी कोई झटका लगता है, it's going to be first with SMEs. Second issue जो है is that it's a more intrinsic kind of a problem which SMEs have in terms of what are the corporate governance structures which are followed. Now, ये तो हम तो इतने सालों से बात कर रहे हैं कि they need to become more professional, but normally when you're talking of small enterprises, maybe you have 5 employees, 10, 15, 20, it may not really be possible. So it's normally an owner-driven company. So that is another problem which has been there historically. How do you really adapt? Do you have professional managers who are taking care of a company? This is an intrinsic problem which is there, which gets exacerbated when we are talking of a COVID kind of a shock. तीसरी जो problem है is labor. Now, अगर आप लेबर को देखेंगे, I think every time there has been a lockdown, what is it which happens? The employer is not able to keep his employees because I cannot pay them if I'm not allowed to operate. So we see a large amount of migration taking place. अभी इस बार लोग बोल रहे हैं कि the amount of migration has been less than what it was last time. It's a matter of numbers. But वैसे तो अगर हम देखेंगे, if I'm a SME entrepreneur and I'm running a shop, देखिए I'm running a kirana shop. I say I'm non-essential goods. I'm not allowed to operate. I'm employing 3 people or 4 people. I cannot pay them salary if I'm not allowed to operate. So if you see the labor problem which is there is more for SMEs compared to the other organizations. चौथी problem जो है is credit. सब लोग बोल रहे हैं कि credit should be given, credit is being given. अगर आप आत्मनिर्भर देखेंगे, emergency line of credit was given. लेकिन अगर आप conditionalities देखेंगे जो which were put when this emergency line of credit was given, one had to be a performing asset. You had to be a standard asset as of February before you got entitled to this new credit. तो सरकार ने क्या अनाउंस किया कि 3 lakh crores will be given. Finally, amount which was sanctioned was 2 lakh crores. Because later on, sometime the FM said that okay, we'll now introduce those 26 sectors under one-time restructuring under Kamath committee, which means that the appetite for funds is another issue. Now, हम लोग जो care ratings में हैं, हम भी कुछ surveys we have carried out with SMEs. Normally, the reaction is saying that देखिए, today I'm not allowed to operate. Why should I take on debt? Why should I borrow money at a lower rate? It's given at 9.5%. मुझे क्यों borrow करना है and pick up debt when I'm not able to produce? So the basic problem is that if I'm not allowed to operate, there is not much demand for credit. We spoke to bankers. Now, what do bankers say? Look, SMEs are high-risk entities. जब भी there's a slowdown which is taking place, we see that NPAs increase. अभी आप देखिए, they have given this one-time restructuring. What happens in one-time restructuring? I'm deferring the problem. I'm not solving the problem. So unless the economy improves in a very big way, only then will I be able to perform. Now, the interesting thing, the last point I'll make is, yeah, RBI in I think April or May, उन्होंने ये announce किया कि SLPROs होगा. There'll be the special targeted lending operations for small finance banks which can lend to the SMEs. 10,000 crores was what was allotted. Lekin auction mein how much money was picked up? I think it was 400 or 500 crores. Then we talked to SFBs and asked them, why is it that you're not picking up? They said, look, this factor is very high. So I think these are the kind of mindsets. This is what's happening at the ground level. And during this time of COVID, whenever we have a lockdown, I think there should be direct action taken by the government in terms of cash transfers. सब लोगों के पास आधार कार्ड है, सब लोगों के पास GST filing है. I know your GST number. I think direct help has to be given by the government. Otherwise, we will see that this entire number will keep getting reduced. अब जो आप लोग बोल रहे हैं कि out of this 50-60 million we have 50% service, 50% manufacturing. Now what Deepak or Anish are talking of, they are saying that lots of technology oriented. We should also see that जो certification है, the larger ones among the SMEs will be the ones who have actually adopted the technology. The chota walas who are seeing a cycle repair shop which is there, who also qualifies as a SME, does not have access to the same. So in short, what I'm saying is that these kind of issues need direct government intervention. Merely providing liquidity will not really help because there has to be an appetite for funds and there has to be a willingness to lend. बिल्कुल, आपने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और ये कुछ और इस तरह के जो 1-2 बड़े इश्यूज हैं उनको हम पार्क करें बागला साहब की टेबल पे। उसके पहले अनिमेश से मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि अभी एक डेटा और क्रिसिल का आया कि जो माइक्रो फाइनेंस का कलेक्शन है वो बुरी तरह से उसमें
गिरावट आई है। 30 दिन से ज्यादा वाले लोग जो हैं 14 से 16% ऐसे हो गए हैं जो 30 दिन में पे नहीं कर पा रहे हैं, जो डबल है करीब करीब। और इसी तरीके से एक दूसरा डेटा है कि 59-60% लोग कह रहे हैं या तो हमको डाउनसाइज करना पड़ेगा या शायद बिजनेस बंद करना पड़ेगा। देखिए ये बात हम कर रहे हैं उन लोगों की जो हमारे इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं, 5-10 करोड़ के ऊपर वाले। लेकिन सबनवी साहब ने जिनका जिक्र किया, साइकिल वाले का, लॉन्ड्री वाले का, धोबी का, प्लम्बर का, जो करोड़ों में है, जो इस हमारे कन्वर्सेशन में ज्यादा कैप्चर नहीं होता, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई स्कीम है। तो अनिमेश, आप इन डेटा को सुनते हैं जब, तो उसका कुछ रियल लाइफ केस स्टडी हमको समझाएं कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर है। देखिए ऐसा है कि अगर हम रजिस्टर्ड यूनिट की बात करें कि जिनको उद्योग आधार नंबर या गवर्नमेंट के पास जिनका डेटा है, 6 करोड़ हैं एमएसएमई यूनिट्स, और उसमें 99% माइक्रो में है। माइक्रो जिनकी आप बात कर रहे हैं, साइकिल रिपेयर शॉप से लेके, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में आते हैं। इन माइक्रो के लिए कोई स्कीम नहीं बनती, इन तक पहुंच ही नहीं पाता कोई। और ये अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है उससे बहुत दूर है ये। और क्योंकि कोई भी बैंक, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, उनकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। इस वजह से इनके लिए कोई भी स्कीम, चाहे आपके जो नेशनल स्किल सेंटर्स हैं, चाहे जो भी गवर्नमेंट के एमएसएमई के प्रमोशन की स्कीम होती है, वहां तक पहुंचती ही नहीं है। तो जब तक कि जो एक बहुत पहले एक हिंदुस्तान में आज से 40-50 साल पहले डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर खोले गए थे हर स्टेट में। उन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था कि चाहे कोई आदमी छोटा सा एक सेटअप उसने लगाया हुआ है, उसको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई गवर्नमेंट की स्कीम या कोई फाइनेंस के लिए या कोई टेक्निकल सपोर्ट। लेकिन अब वो एक टिपिकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो एक सिर्फ पेपर वर्क करते हैं, कुछ सर्वे करके अपना एक डेटा गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं। जब तक उस तरह की चीज को हम रिवाइव नहीं करेंगे कि जहां पर एक छोटा एमएसएमई ओनर जिसकी साइकिल रिपेयर है, या अगर वो 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए का टर्नओवर करता है, ही कैन वॉक इन देयर, उसको वो जो फाइनेंस की दिक्कतें हैं, उसको कोई फंडिंग की सुविधा मिल सके एक रीजनेबल प्राइस पे। एक बहुत बड़ा मिसनॉमर है कि एमएसएमई को चीपर रेट ऑफ फंडिंग चाहिए। हमें चीपर नहीं चाहिए। जो बैंक का रेगुलर फाइनेंस है 10% 11% पे, अगर आप वो भी हमें दे देंगे ना, तो हम बहुत अच्छे से अपना काम चला सकते हैं। ये बड़े कॉर्पोरेट्स का ज्यादा इंटरेस्ट है कि उनको 7% में मिल जाए, 8% पर, जो अपने साइज से नेगोशिएट भी कर लेते हैं। हमारे को जब 24% लेना पड़ता है, तो हमें अगर 11% मिल जाए और हमको कोई धमकाने वाला ना हो, या हमारे ऊपर वो ब्याज जो है वो उसके ऊपर ना ऐसे साइकिल ना शुरू हो जाए कि हम उसमें ट्रैप में फंस जाए इंटरेस्ट के, प्लस टेक्निकल सपोर्ट। आज की डेट में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि क्वालिटी ओरिएंटेशन बढ़ता जा रहा है, हर एक की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। अब हम एक एमएसएमई है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूं, जो मेरा B2B का क्लाइंट है या जो मेरा B2C का है, they all expect a better and standard quality from me, but I don't have access, मेरे पास नॉलेज भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं है। तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर या किसी स्किल सेंटर में जा सकूं, वहां पे कुछ मुझे स्किल भी मिल जाए और कुछ मुझे टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी मिल जाए। प्लस ये है कि मेरी पेमेंट का मैकेनिज्म, तो ये हालत बहुत खराब है। जो माइक्रो और टाइनी इंटरप्राइजेस हैं, उनकी हालत खराब है, वहां तक गवर्नमेंट पहुंचती ही नहीं है कभी। और ये जो डेटा आपके सामने है, ये आप देखिएगा, काफी लोग, हम लोगों को डेटा जो मिल रही है इन्फॉर्मेशन, काफी लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं। जो छोटी छोटी यूनिटें चलाते थे, दे आर शटिंग डाउन इट एंड दे आर लुकिंग फॉर द जॉब। So this will be a big social issue also after a few months, which we are noticing. बिल्कुल। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जीडीपी का 1/3 से ज्यादा है, बैकबोन हम इनको कहते हैं। और बागला साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी जान तो है, लेकिन ये हमारी जिंदगी को भी इस मुश्किल में ठीक बनाने में बड़ी मदद कर रहे हैं। इनकी जिंदगी की क्या मुश्किलें हैं, मुझे अब सवाल भी पूछने की जरूरत नहीं है। बागला साहब, इन्होंने बहुत सारे इश्यूज फ्लैग किए हैं, सबनवी साहब ने भी और सक्सेना जी ने भी। जाहिर है कि आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्स होंगे। संजय, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि मैं क्यों ऑप्टिमिस्टिक हूं इस पूरे सेक्टर के लिए। दिक्कतें हैं, और बहुत अच्छी तरह मदन और अनिवेश ने दोनों ने बताया, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कैश फ्लो, इट इज अबाउट क्वालिटी, इट इज अबाउट एक्सेस, it is about their desire to change, and I think that is where is the entire focus of the government. इनको एक 360 सपोर्ट की आवश्यकता है, और वही है जो सरकार आज पूरा प्रयत्न उस पे उनका है। तो क्या क्या हो रहा है, अगर आप देखिए, पहले तो जो हमारी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे वहां पे वी कैन क्रिएट
these clusters of MSMEs हम्म, और अपग्रेड में करके उनको प्लग एंड प्ले मॉडल कर दिया, उनकी जिंदगी थोड़ी सरल हो जाएगी, उनके लिए उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ला दिया तो उनका कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम हो सकता है, एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी क्रिएट की जा रही है। ये सब चीजें उस तरीके से हो रही है। दूसरा, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ डिजिटाइजेशन, बिगेस्ट बेनिफिट्स इज गोइंग टू बी माय MSME। वो क्यों? अनिमेश ने बिल्कुल सही बोला, वो छोटे से MSME पे जो बिल्कुल ही माइक्रो है उस तक पहुंचना अभी तक कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर बैंक की ब्रांच नहीं है वहां पे जाने। अब वो माइक्रो फाइनेंस है, अब मेरे पास एक व्हीकल आ गया है जो वहां तक पहुंच पा रहा है। अब मेरे पास एक वो व्हीकल आ गया है डिजिटाइजेशन के साथ कि मैं उनको बता सकूं कि नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या आ रही हैं और मैं उनको उसके साथ जोड़ सकूं। मैं उनको ये भी दिखा सकूं और मॉनिटर कर सकूं कि उनकी कितने आउटस्टैंडिंग्स हो रहे हैं कहां से, और वो आउटस्टैंडिंग्स कितने जल्दी क्लियर किए जा सकते हैं, और उनको मार्केट के साथ जोड़े। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। एक प्रधानमंत्री जी ने एक नई इनिशिएटिव दिया था और वो आजकल इन्वेस्ट इंडिया उस पर लगा हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को ढूंढकर और उस प्रोडक्ट को ग्लोबल प्रोडक्ट बना। और अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट बाय एंड लार्ज इज अराउंड MSME क्लस्टर्स। चाहे टर्मरिक हो आपकी नॉर्थ ईस्ट से, चाहे आपका हैंडलूम हो यूपी से या कर्नाटका से या कहीं से भी, हर चीजें ऐसी वो MSME क्लस्टर के साथ है। वहां पे क्या हो रहा है, अब एक 360 अप्रोच दी जा रही है उनके साथ। एक तो डिजाइन टीम आ रही है कि आप ऐसे डिजाइन करेंगे तो ज्यादा उसका मार्केट होगा, पैकेजिंग टीम आ रही है, फंडिंग टीम आ रही है, उनका कनेक्टिविटी हो रहा है। अभी हम उनके साथ वी आर ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल रोड शोज फॉर देम, जहां पे ग्लोबल मार्केट्स आर एक्सेसिंग देम। आपको पता था मतलब दुनिया के सबसे अच्छी टर्मरिक हमारे भारत में है, और हम वो टर्मरिक एक्सपोर्ट इतनी नहीं कर पा रहे थे, उसको प्रोत्साहन करना। दीज आर ऑल कमिंग आउट ऑफ द MSME सेक्टर। आयुष को लेकर उसमें कई चीजें हैं जो MSME सेक्टर में, ये जो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी आ रही है, उसके साथ ये जो 360 की जो बात हो रही थी कि क्वालिटी उनके लिए कैसे लेके आनी है, टेक्नोलॉजी कैसे लाना है, कैश फ्लो कैसे लाना है, मार्केट एक्सेस कैसे दिलवाना है, वो सब आ रहा है। अब हाँ, ये बात सच है कि कोविड में सभी को धक्का लगा है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे आप हो और हम हो। इस बारी इसने किसी को नहीं छोड़ा, दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा, और हम सब में अब क्षमता है कि हम इससे निकलेंगे। लेट मी गिव यू वन स्मॉल इंस्टेंस संजय जी। सारी दुनिया का FDI एज पर द UNCTAD रिपोर्ट 40% कम हुआ है पिछले साल। केवल 2 देश हैं पूरी दुनिया में जिनका FDI बढ़ा, भारत उनमें से एक है। 10% FDI मेरा बढ़ा है और मेरा FDI 81.7 बिलियन है, विच इज द हाईएस्ट एवर वी हैव गॉट इन आवर हिस्ट्री, जबकि सब कुछ बंद पड़ा था। ये क्यों? ये इसलिए कि दुनिया अब देख रही है कि भारत में आकर इसको एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना दुनिया के लिए इज वेयर दे वांट टू बी। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हाँ यह है कि ये सारा इन्वेस्टमेंट वो एक अलग विषय है कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में गए हैं, उससे फ्रेश प्रोजेक्ट में उतना FDI अभी भी नहीं आ रहा है। Sanjay, let me clarify that. Lot of it is coming in greenfield investment. Okay. And we are now one of the highest greenfield destinations in the world. Please remember that. Excellent, जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है वो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। Excellent, excellent. और जो हमें मिल रहा है वो भी कभी नहीं इनकार करना चाहिए। नहीं, एक और रे ऑफ होप है एक्सपोर्ट, उस पर मैं आता हूं, लेकिन उसके पहले जो चर्चा हम कर रहे हैं MSME के बारे में, उसमें एक इशू और है ना, वो ये है कि डिजाइन जो है, क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की गई, कुछ उसमें सुविधाएं बढ़ाई गई, और उसमें जाहिर है कि ये आप एक स्टेक होल्डर हैं सरकार डिसीजन मेकर्स की तरफ से, कुछ और लोगों को इसमें अपना रोल प्ले करना है। MSME मिनिस्ट्री शायद, जैसा मैंने सुना है, वो ये कह रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि इसमें प्रमोटर की जो चीजें, कुछ शर्तें जोड़ दी गई हैं प्रोसीजर्स में, उसके कारण बड़ा रिलक्टेंस है लोगों को इन फैसिलिटीज को लेना। तो जो 20,000 करोड़ का पैकेज हम MSME के लिए देख रहे थे, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है। अनिमेश, मैं सही हूँ या इसमें कुछ और पर्सपेक्टिव है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी स्कीम या कोई भी प्रोडक्ट कि वो कितना अच्छा है, इस चीज से एक ही बेंचमार्क है कि कितनी जल्दी उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको ले लिया। जी।
अगर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की हम चाहे बात कर लें, 3 लाख करोड़ की आज तक यूटिलाइज नहीं हुआ वो फंड। गवर्नमेंट में उसमें 2-3 वर्जन लाके और भी सेक्टर ऐड किए, एंड टोटल बेनिफिशियरी उसके 46 लाख या 45 लाख हैं। दीपक वुड बी नोइंग बेटर कि उसके टोटल बेनिफिशियरी कितने हैं अभी तक। इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्री के लिए शायद ठीक से सूटेड या टेलर मेड नहीं था, स्पेशली एमएसएमई के लिए, कि उसमें जो कुछ शर्तें थी ऐसे ही वो 20,000। तो ये जितनी भी फंडिंग है ये पहुंची नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिजाइन की गई है वो शायद रियलिटी चेक पूरा किया नहीं गया कि वाकई इंडस्ट्री को जरूरत क्या थी, और उस हिसाब से उस स्कीम को हम प्रोडक्ट को डिजाइन करें। इंटेंशंस आर वेरी गुड, we never raise any doubt on the intention here, but the design is the issue. Design is the issue, and design is faulty. So are you hoping some amendments are going to be announced soon? When I hear people like Deepak saying, and we really feel and we are optimistic on that, the government is really trying hard, working hard. लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को जल्दी करना पड़ेगा इसमें काम, क्योंकि आप ये सोचिएगा कि अगर ये कोविड जो सेकेंड वेव गई और थर्ड वेव जिस हिसाब से इस लूमिंग लार्ज ऑन अस, और जिस हिसाब से रोज पता चल रहा है कि शायद 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कभी भी हो सकती है, इट विल बी डिवास्टेटिंग। जो हम एमएसएमई ने किसी तरह से, एमएसएमई में दीपक ने भी यही कहा, रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये कब तक? अगर हमें ये तीसरा झटका भी आ गया और स्कीम्स हमें कुछ ऐसी सपोर्ट की नहीं आई गवर्नमेंट की, तो मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट को अभी भी। अच्छा हाँ प्लीज। बिल्कुल नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर सबनवी साहब, एक एमएसएमई के पर्सपेक्टिव में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि पूरे मैक्रो डेटा ट्रैक करते हैं, सबसे बड़ा कंसर्न यही है। मुझे लगता है प्लानिंग तो ये होनी होगी ना कि मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, थर्ड सर्ज आ सकती है, फोर्थ आ सकती है। ये सारी इंडस्ट्री हम जिनकी बात कर रहे हैं ये है कॉन्टैक्ट वाली, ये कॉन्टैक्टलेस नहीं है कि इतना लंबा अपने आप सस्टेन कर जाएंगी। इनको फैसिलिटेट करना और इनको वो सारा कुछ प्रोवाइड करना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि इनके बदौलत ही इकोनॉमी चल पाएगी, लास्ट माइल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं। उसके लिए वैक्सीन का जो इशू है वो अभी एक अपनी रफ्तार है, वो एक समय में जाके पूरा होगा। मेरा अपना मानना है कि 9 महीने के पहले हम 70% 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। ये कोरिलेशन जरा हम आपसे समझना चाहते हैं सर। The whole idea of vaccination is to say that in case ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो जाता है और थर्ड वेव या फोर्थ वेव आता है, there will be fewer people who are infected and we may not have to go in for a lockdown. I mean, that is the simple thing. जो भी हमारा होप है कि vaccinate a maximum number of people so that whenever there is another strike of the virus, we don't have to go for any kind of a lockdown, which means that business can actually carry on as they can do in the normal conditions. So that's the whole idea. But I think when we're talking of the MSMEs, I don't know if we can have special vaccination drives for MSMEs, saying that everybody working in MSMEs will be given some preference. I don't think that may be feasible, क्योंकि अगर हम देखेंगे they're all spread across the country, rural areas, urban areas, that's not something which is possible. But what I feel should be done is definitely there should be a package which should be custom made for the SMEs. And I think the most important part is, of course, funding. I think interest rate subvention is something which I would back for, saying that instead of 9.5%, the government can give an interest subsidy, take it on the budget, and make sure that people don't have to close down. इसलिए जब मैंने पहले बोला that there should be kind of cash transfers which should be made, make sure that the labor doesn't have to go. क्योंकि अगर जो challenge है SME से कहा, they will say that look, my labor went back to the villages last year, again they've gone back this year. How can I call them back? क्योंकि हमारा problem जो है इंडिया में in terms of policy is uncertainty. अगर हम सब बोलते हैं कि for 6 महीने के लिए हम सब कुछ को बंद कर रहे हैं, I think business is quite smart. I think SMEs is smart, they can operate. लेकिन we are going by 15 days by 15 days. Even today, for example, अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे, I am located in Mumbai, there is no clarity about when business can really operate. So today, if I'm an entrepreneur, do I really know can I start operating from July 1st? Will it be August 1st? Will it be September 1st? Yeah, uncertainty जो है, I think that is something which needs to be brushed aside. I think that will be very good for SMEs. Absolutely. बागला साहब, ये जो पॉइंट है कि इस अनसर्टेनिटी में जो वर्ड यूज हुए हैं, बेटर डिजाइन, कैश ट्रांसफर, फास्ट ट्रैक, मैं कहूंगा उसको कि ऑन टैप, कि ये अनसर्टेनिटी रही और अगर सर्ज आता रहा तो 24 घंटे में काम होना चाहिए, महीने 2 महीने नहीं लगने चाहिए प्रोसीजर की। और इसमें डर क्या, मैं बताता हूँ, पॉलिसी मेकर सिंसियर है, उनको डर ये है
लीकेज ना हो जाए, मिसयूज ना हो जाए, तो डिजाइन को कॉम्प्लेक्स कर दो। एम आई राइट? देखो संजय, एक तो ये बात सच हमें सबको माननी पड़ेगी कि ये जो पेंडेमिक आया है इसका कोई प्लेबुक नहीं, कुछ पता नहीं ये कल क्या करे किसी को। हम लोग सोच सकते हैं क्या करेगा और उसके लिए कुछ पहले से प्लानिंग कर सकते हैं जो हो रही है। क्या मोड़ लेता है और उस मोड़ को कैसे देखना है, कोशिश ही है और केवल प्रयत्न है और पूरा प्रयत्न। इस सरकार की एक चीज मैंने देखी है विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स ऑफ दिस गवर्नमेंट is they work with very extensive stakeholder involvement. पूरा फीडबैक बार बार लेके, अनिमेश के साथ भी कई मीटिंग्स हैं इनकी, पूरी फेडरेशन के साथ, एमएसएमईज के साथ, सबके साथ कि क्या क्या और किया जा सकता है। हर मोड़ पे फिर दोबारा कंसल्टेशन की आप क्या कर सकते हैं। और ये मैं आपकी बात हमेशा मानता हूं कि जितना जल्दी कर सके उतना आवश्यक है। पर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट संजय कि ये पब्लिक मनी है, कैन नॉट जस्ट बी फ्लाउंडर्ड। इसको भी आदमी को ध्यान से खर्च करना है, क्योंकि अगर इधर उधर लीकेज होने लगी तो और बिगर प्रॉब्लम। क्योंकि सरकार में लीकेज के लिए देयर इज जस्ट नो स्पेस, दैट इज अ फोकस। सो यस, extensive and intensive consultation is happening every day with all stakeholders, and that is where these are being designed, and these designs are being changed and altered to see how they can be made more effective. वो हर समय हो रहा है, and more channels are being created to see कि हम वो कहां तक पहुंच पाए कि वो solutions जल्दी से वहां तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन एक सब्जेक्ट जो आपने छुआ था और आप जिस स्पेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो है एक्सपोर्ट वाला, जिसमें कि इस पूरे क्राइसिस दौर में भी हमारे पास अच्छी खबर आई है कि वो बढ़ रहा है। इसमें बस छोटा सा मेरा आपसे एक कोरल ये है कि टर्मरिक वगैरह बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, बढ़िया स्टोरीज हैं, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। और अभी मौका है कि एमएसएमईज को एक्सपोर्ट में बड़ा रोल प्ले करने के लिए बहुत ही फिर फोकस्ड मदद की बात है। संजय, ये स्टोरीज नहीं है, ये एक सत्य है। और अगर इसको स्टोरी समझोगे तो फिर गलत होगा, क्योंकि दिस इज व्हाट इज चेंजिंग द लाइव्स ऑफ दोस पीपल। No, I was talking जिनको अभी about तक वो फोकस नहीं मिल रहा। exports. I was talking about large scales. तो जब आप ऐसे स्केल को इकट्ठा करेंगे वही लार्ज स्केल निकलेगा, नहीं तो आप केवल स्टील एक्सपोर्ट करते रहेंगे। जो भारत की रियली स्ट्रेंथ्स हैं सारे में, उन स्ट्रेंथ्स को जब तक हम नहीं अलाइव करेंगे। मैं तो आप टर्मरिक छोड़ो, मैं तो चाहता हूं कि हर जगह मेरा आम पहुंचे जो आप और मैं खाते हैं और जो इसके लिए हम जानते हैं। हर जगह मेरी साड़ी पहुंचे, मेरा टेक्सटाइल पहुंचे, मेरा अखरोट पहुंचे। और जब तक, जिस दिन हम ये सब कर देंगे, प्लीज रिमेंबर, देश के जो माइक्रो अनिमेश ने बताया था, वो सबसे ज्यादा इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। और सारा फर्क और सबसे ज्यादा फायदा उधर ही पहुंच रहा है, और उसी से ये एक्सपोर्ट उठेगा। तो जब तक हम बॉटम अप अप्रोच ऐसे नहीं करेंगे, ऊपर तो हो ही रहा है, ऊपर की काउंसिल्स हैं, वो तो इतने सालों से चलती आ रही हैं। अब जो देश बनाने के प्रयत्न हो रहा है, जो नया भारत, और जो हमारे प्रधानमंत्री का पूरा ऑब्जेक्टिव है, वो नीचे से ऊपर उठाना है। बिल्कुल। एमएसएमई डे के दिन आप लोगों से जो आज बातचीत हुई है बहुत ही इंसाइटफुल और कैंडिड रही है, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों की तीनों की अलग अलग एक पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन आप लोग काफी इन्वॉल्व हैं इस इशू में, और आपस में आप लोगों में बातचीत भी चल रही है। और दर्शकों को ये बात भी बता देना जरूरी है कि बागला साहब और मदन तो क्लासमेट रहे हैं, और अनिमेश उनको इन अ वे एजुकेटिव सेंस में अभी भी करते होंगे, क्योंकि स्टेक होल्डर के साथ सीधे काम करते हैं, और तीनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप लोगों ने आज हमारे लिए वक्त निकाला। बागला साहब, अनिमेश, सबनवी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजय।